hi guys, I welcome you all on this new podcast. Today we are standing in front of our Professor Rumi sir, and today it will be a great day. I'm being supported by my friend and my junior Rahul, who is holding my camera. So today we'll be interviewing our professor, and in this journey of podcasting, we'll be talking about lots of things. And this podcast will be more podcast come interview. We'll be asking lots of questions to our sir, and we'll be learning from it. So I welcome you all on this podcast thing. Because I wanted a flame. तो पहले मैंने सोचा था कैंडल बनाएंगे. तो ये वाली पेंटिंग का पहले मैंने बैकग्राउंड बनाया, फिर मैंने सोचा नहीं, इसमें फायर का जो है वो किसी तरह से उस किस्म से दिया जाए कि लगे नहीं कहाँ क्या जल रहा है. इट्स जस्ट काइंड ऑफ क्योंकि कंट्रास्ट ब्लैक और उसका फ्लेम का था. तो मुझको बहुत पसंद आई थी पेंटिंग एक्चुअली. You can see this. It's kind of a flame and the smoke. Actually, ये जो कलर है ये स्मोक कलर है एक्चुअली बेसिकली. तो द स्मोक इज जस्ट वैनिशिंग समवेयर, क्योंकि स्मोक वैसे भी निकलता है. तो यहीं से फायर से जो है वो आगे जाकर के It's awesome. पेंटिंग का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट उसका फ्रेम है. जब मैं इस पेंटिंग को फ्रेम कराने गया तो उसने बोला कि काम करते हैं इसमें जो है ट्री का जो है वो दिया जाए. Because there is tree. Because of the tree. Awesome. और ये एक्चुअली मैंने एक फोटोग्राफ खींची थी. इट वाज इन केरला. तो मुझको ये वेव्स बड़े अच्छे लग रहे थे. तो वो वेव्स का जो है थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश की. आइए आपको इसको बनाते हैं. बस टाइम एक सेकंड. This is also kind of I had gone to कन्याकुमारी. तो कन्याकुमारी में मैंने ये वाला इस किस्म का देखा था. तो फिर मैं जब यहाँ वापस आया तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. It was in your memory, right? तो मैंने इसको फेसबुक में डाला था तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छी फोटोग्राफ है. मैंने कहा फोटोग्राफ नहीं पेंटिंग है. ये वाली तो बहुत पुरानी पेंटिंग है, इसमें तो इसको फ्रेम भी नहीं किया मैंने. कहीं मतलब किसी फोटोग्राफ से पेंटिंग नहीं बना. मैं अपने ही दिल से जो मेरा कंसेप्ट होता है किसी चीज़ का मैं, और कोई भी मेरी प्लानिंग नहीं होती है इसको ऐसे बनाएंगे या वैसे बनाएंगे. इधर कैनवस है, जो भी बन रहा है बनाते बनाते जो सोचा था वो बिल्कुल अलग हो जाता है. There is one more here. ये भी मैंने मतलब अपने दिल से जो बनाना चाहा था बनाता गया और चीज़ों पे ऐड करता गया. ये मेरे फादर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि मुझको एक वाटरफॉल चाहिए. Wow. ये मेरे फादर, हम दोनों का कुतुब मीनार के पास फोटोग्राफ. तो ये वाटरफॉल बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि मुझको मून चाहिए और मून की लाइट जो है वो वाटरफॉल पे गिरनी चाहिए. Oh, that we can see more, right? और ये उनके बाद उनके डेथ से के बाद मैंने यहाँ ले आया था. उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा था इसको. And this one I can see. Yes, this is very important. That's what I was talking about. Of course, I talk to myself. Sometimes I need expert advice. Expert advice सबसे ज़्यादा तो मैं खुद अपने आप को दे सकता हूँ ना. So with us today, this would be unscripted podcast with him. In this podcast, we are not going to focus on particular written question. Today, we are going to ask some questions from him, from his life, from his experience, from his daily routine. I'm just so grateful, sir, to have you again on this podcast. It's my pleasure always. You agreed. For one thing, I just want to tell my all viewers that sir has been always so supportive in all this new initiative. I tried doing all this thing last year also, and it was a nice experience, and sir supported us, and that's how I'm here again and doing this podcast again. So sir, today, as I said, sir, today we'll be discussing more about you, not any particular question. We are how you want to do this, how to crack this and that.
basically today it's all about you. Sir, first, how are you doing, sir? Great, absolutely. Waiting to get retired. Sir, you are the role model for us in health and fitness. Oh, We thank you. all know. We our all first year, second year, third year. I'm floored. Absolutely. So, sir, currently talk us through currently what is your daily routine and how do you take care of your health in now? Well, talking about my daily routine is something quite funny, actually, you know it. Basically, every student knows that when they go to sleep, I go out for cycling. That is, I wake up very early Mhm. and I do my workout in my room. Then if possible, most of the time I try my best to go for cycling because I love it. That's how my day starts. And that is the time when nobody disturbs me, I'm just all alone. It's great fun, you know. After that, it's my center. I have to go to the classroom. So get ready fast and reach my center by 7:38. Then after the classes, I come back home, rest for some time, lie down. That's how actually the day passes, you know. It's very rare that I entertain myself, in the sense that my entertainments are totally different. I don't usually go out much. Uh, if I happen to watch a movie, I do it here itself. I don't go to the theaters. But I love going to plays. Whenever there's a good play going on, I make it a point to go because I love theater. Theater more than films, actually. Wow. Yeah, definitely. Because theater is something a different kind of a genre where you have a live, actors, and it's very different experience actually when you actually see a drama or watch a movie. There's a kind of difference, and I like watching dramas. Whenever it is here in town, I go. Wow. And then that's it. That's how it actually goes every day. Then I have my own hobbies, so sometimes I take my time off and indulge in all kinds of other activities. Like, sir, painting, right? Painting, cooking, Yes, sir, cooking. doing so many things actually. Wow. Sir, currently, when do you go for sleep? When you retire for sleep? I sleep very early. By 8 o'clock, I have my dinner, and 9 o'clock, go to sleep. It's regularly. It's like Yeah, it's always like that. अगर कोई आ जाता है घर पे तो बात अलग है, या मुझे कहीं जाना हो किसी की पार्टी में तो देर हो जाती है. अदरवाइज यूजुअल जो मेरा वो है रूटीन है वो सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला केस है. Makes a man perfect and wise. So, sir, how many push-ups now? Sorry? How many push-ups you're able to do now? I actually had reached 50, but then I slowed down. I said, no, it's कुछ ज़्यादा ही हो गया. Oh my god. 50. That's good, sir. Sir, you just talked us about the solitude in the morning. You get solitude, time with your own self. Nowadays, what I'm seeing, sir, we are youngsters basically. We are so scared to be with our own thoughts. Be in a sit in room. If we are sitting in room, we are constantly watching phone, right? Glued in phone. So, how important is to be quiet and sit with our own self? What do you think, sir? What you found? I think that's a very important part of my life, at least. I can't say for everyone. There is something called me time, where you actually, when you're around people, your thoughts are, somehow influenced by others, right? It's not yours all the time. It's 100% कोई आपकी बात थोड़ी सुनेगा, वो अपनी बात भी कहेगा. तो एक वक्त आता है जब आपको अपने आप से भी बात करना चाहिए, जब अपने थॉट्स में रहें आप, जब आप अकेले में अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान सकते हैं. वैसे बाय द वे मैं तो मेरा जो आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट, आई हैव यूजुअली स्टेड एलिएनेटेड फ्रॉम अदर्स. सारा दिन नहीं,
कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो मैं अपने लिए निकाल ही लेता हूँ, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, अपनी कमज़ोरियों को पे ध्यान देता हूँ, जब मुझको लगता है कि हाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो एक टाइम है जिसका किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है मेरे ऊपर। अगर मैं ज़ोर से आपसे बोलूँगा कि मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आपका ओपिनियन आएगा ना, मेरा अपना ओपिनियन शायद ना आए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो अकेलापन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के ग्रोथ के लिए, क्योंकि वही एक वक्त होता है जब आप अपने सामने होते हैं, जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, when you are speaking to yourself, when you are discussing something with yourself, you know, it's very important factor in anybody's life for that matter. Good that आप लोगों के साथ रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सीरियस डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो अकेलेपन में अपने आप से जब बात करते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। तो इसको अकेलापन नहीं कहते एक्चुअली, यू आर नॉट अलोन, यू आर विद योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। Sir, now if you reflect back in your life, so what was important? This friend circle, the family. Everything had its own place, like in the sense that friends were there, relatives were there, so everything has its own place, you know. So इसलिए जब मैं कहता हूँ ना, जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी भी मेरे पास जो है मुझे अलग कमरा दिया गया था, क्योंकि मैंने जिद की थी। आमतौर से ये होता है कि जो बचपना जो है ना वो बचपन में एक दूसरे से मिल के ही होता है, लेकिन मेरी कुछ आदत ही अजीब थी कि मुझे स्कूल डेज से ही मुझे अपने लिए वक्त चाहिए होता था। आई नीडेड टाइम फॉर माई सेल्फ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे होमवर्क कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉन्टेड टू बी अलोन फॉर सम टाइम एट लीस्ट, regularly. Yes, that has been me, you know, since my childhood. And I think I gained a lot because I understood myself. मैं अपने आप को पहचान पाया, क्योंकि मैंने किसी और का, बाकी लोग ओपिनियन देने के लिए तो बहुत हैं, है ना। तो अगर अपना ओपिनियन अपने बारे में जो आप में जो कमियां हैं या आप में जो खूबियां हैं उनको पहचानने के लिए आप ही हैं। जो दूसरा आपके बारे में तारीफ आपकी करता है या आपकी शिकायत करता है वो उसका ओपिनियन है, आपका नहीं है वो। तो ये बचपन से मेरी यही आदत रही है। मैं दोस्तों के साथ खेला हूँ, हंसी मजाक किया है सब चीज़ का एक कंपार्टमेंट है, एक अलग। रिलेटिव्स के साथ मेरे साथ तो हम लोग तो न्यूक्लियर फैमिली में रहे, हम जॉइंट फैमिली नहीं रहे। तो वही पापा काम करते थे, शाम में आते थे। बहनों के साथ भी मैं बहुत खेला हूँ, उनकी गुड़ियों के साथ खेला हूँ, क्योंकि मैं अकेला लड़का था, 2 लड़कियाँ थी, 2 बहनें, तो उनके जो शौक थे उसमें मैं भी हिस्सा ले लेता था। तो लाइक इट वाज क्वाइट कॉर्डियल एंड हैड इट्स ओन इफेक्ट ऑन मी। Sir, you are also a good speaker, what we have found from last podcast and in our class also. So how to become effective speaker like you? Could you have? I don't know, I'm a good speaker or not. Yeah, you are, sir. Anyway, well, I think the first thing is that you should be able to pronounce clearly and loudly. You know, जो मम्बल करने की जो बहुत लोगों की आदत है ना, उससे ये होता है कि आप खुद तो सुन लिया अपनी बात, लेकिन कोई दूसरा नहीं सुन पाया। You know, तो आपको पहले तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये है क्या, कम्युनिकेशन है ना, तो जब तक कि आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या उस तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है तब तक तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहली बात तो है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहाँ बोल रहे हैं बोलिए ना ढंग से, है ना। Yes, sir. और फिर जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ सब्सटेंस ला पाएंगे ऐसे। और इसको कुछ लोगों ने कहा है वैसे कि मतलब कुछ लोगों के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है कि आप जब लगातार 1 घंटे तक बोलते रहेंगे ना तो लोग बोर हो जाएंगे। ये नहीं है कि एक लोग होना चाहिए कि आप ही बोले जा रहे हैं दूसरा सुने जा रहा है बेचारा ज़बरदस्ती क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप दूसरे को मौका दीजिए बोलने के लिए और कोशिश करिए कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए।
ये जो है मैंने सीखा है क्लासरूम टीचिंग से। क्योंकि मेरे क्लास में मान लीजिए जो बैक बेंच है उसमें अगर कोई बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। यस सर। वरना वो तो फिर आइसोलेट हो जाएंगे ना। तो ये जो है प्रैक्टिस मेरे ख्याल से मुझको क्लासरूम टीचिंग से ही हुई है। Okay. So at the end we have to expose and we have to speak. You have to actually make it a point that you also listen to your voice in that manner that बल्कि मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी कहा होगा कि जब आप अकेले कमरे में होते हैं Yes, sir. तो आप अपने आप से, हम सब लोग अपने आप से बात करते ही हैं, चाहे वो अकेले हों या दो अकेले हों। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप आईने के पास खड़े हो जाइए और आप बात करिए अपने आप से, मोनोलॉग ही रहे किसी भी टॉपिक पे या कुछ भी, या रोना हो तो रोइए, बोलना है, हंसना है तो हंसिए, जो बात कहनी है दिल की कह दीजिए। और जब आप आईने के सामने बोलेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी बात वाकई में कोई सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। ये ना, तो ये देखा से मेन चीज़ है। That's great, sir. So now I was watching lots of social media, and there I was watching some reels, in fact, some YouTube videos where people were discussing the masculinity, being a man. What does it mean to be a man? So what do you think, sir, in your experience? I don't know which social media you have seen and what kind of definition was given. Yeah. They were a particular sect of people. They were telling that man should be so, macho type. But what exactly to be a man, to a gentleman? Well, I think you said the right word. I think a man should be a gentleman first of all, And एक चीज होती है जिसको मैन तो छोड़ो, मतलब ये दैट आई डोंट नो, आई वोंट बी एबल टू डिफाइन कि कौन जेंटलमैन है एक्चुअली। बट एक चीज़ होती है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप जब पढ़ते थे तो आपको टीचर्स कैसे लगते थे, मेरा तो आंसर एक ही है इसका कि एक टीचर को भी आप कह सकते हैं कि हाँ ये जेंटलमैन है या मैन है, वट एवर डिफिनेशन यू से। ह्यूमिलिटी आई थिंक इज वन फैक्टर दैट हैज़ टू बी इन यू, दैट्स नंबर वन। मैं टीचर हूँ इसलिए मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे चाहिए कि मैं अप्रोचेबल हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट को, मतलब हर स्टूडेंट को ये भरोसा होना चाहिए कि रूमी के पास जा सकते हैं, रूमी मना नहीं करेगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ये एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम क्लासरूम में हैं तो कुछ लोगों का सुना है मैंने, बहुत लोग होते हैं कि मैंने आज 1.5 घंटे का लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर था, मैंने खूब मेहनत की थी लेक्चर में और बहुत अच्छे तरह से मैं बोला। तो मैं उनसे एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि आपने मुड़ के पूछा कि किसी को समझ आया कि नहीं आया? तो एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है कि जो कम्युनिकेशन एक टीचर कर रहा है वो एक मोनोलॉग तो है नहीं। जब तक कि आप किसी स्टूडेंट को प्रोवोक नहीं कर रहे हो, किसी क्वेश्चन पूछने की ताकत नहीं दे रहे हो, जब तक कि उसमें जो है वो एहसास नहीं हो रहा है कि मैं टीचर से पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता, मतलब ये बैरियर नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि मैं सर से पूछूं कि नहीं पूछूं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो बेधड़क पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे जवाब दूंगा। नंबर 2, हम लोग के यहाँ टीचर्स में एक क्वालिटी और होनी चाहिए, वो ये कि आपका जो है ना, कई बार हुआ मेरे सारे क्लासरूम में, मैं जब पूछता हूँ कि सब कुछ समझ आ गया तो 99% कहते हैं हाँ समझ आ गया। जो 1% है ना, वो डर के मारे नहीं बोलता कि मुझे समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सबको समझ आ गया तो मुझे समझ नहीं आया, इसका मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, सर क्या बोलेंगे। लेकिन यकीन मानो मैं उस 1% के लिए पूरे 99% को रोक के रख दूंगा, क्योंकि मेरा 100% काम ही नहीं हुआ जब तक कि 100% को समझ में नहीं आया। तो एक इस किस्म का एक कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं कि रूमी अच्छा टीचर है, तो वही डेफिनेशन है अच्छा पर्सन, वो पर्सन जो दूसरे को समझ सके। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है मुझसे।
जो शायद अपने उन लोगों ने ये भी कहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतनी ताकत है कि हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये मेरे ख्याल से मेरा तो डिफरेंशिएशन यही है कि इंसान ऐसा होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पता नहीं उतना हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा यही कोशिश रही कि ये क्वालिटीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो या तो उनको पैदा करो ऐसे क्वालिटीज़ को, या तो जो क्वालिटीज़ उनको संभाल के रखो। मेरे ख्याल से मेरा डेफिनेशन यही है और कुछ नहीं। That's so deep, sir. So recently we did a survey with first and second year students that what are some characteristics you want to have in your teacher or professor. Wow, great. And we got to know that you are one of the most hated person. They want you as their teacher. Now that you must have asked in CRS, right? Yes, sir. That's something you should have asked somebody from outside CRS. So outside we did ask, and 2-3 terms we got to know that. First one was being understandable. Let me understand, what kind of answers did you get? So we got answers like, sir, I want a professor or teacher who understand me and my problem first. Great. And then who is not just making me feel different just because I am performing good or bad. Means he is not or she is not being judged by his grade and something. And third one was, sir, that your teacher should be more friendly. Friendly in the sense that after class, when you meet, there is a feeling of warmth between both person. So these are some basic patterns which I found in all these questions, sir. I absolutely agree. Absolutely agree. Because you see, first of all, you have to engage the students, right? By engagement, I mean that you have to actually, the teacher should be able to understand the problems of the students. Look, last time also I told you that till date I haven't forgotten that I was a student too. I had the same kind of problems probably, or maybe some more difficult problems than you people say are facing. Even I didn't understand why this verb of quotient is used here and why this tense is used here and there. So and so forth. 1001 questions I had. Alright? So why shouldn't I understand a student who is facing the same problem? Or maybe new problems. The problem is a problem. And a teacher has to somehow or the other solve it. You know, until unless I engage, चाहे आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका क्लास का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका किसी का भी प्रॉब्लम हो, आई शुड बी अ पर्सन जिसके पास बेधड़क स्टूडेंट आ जाए, जिसको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हो कि रूमी सर से पूछे कि नहीं पूछे, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, यू नो। एंड दैट्स हाउ आई हैव ट्राइड टू बिल्ड माई सेल्फ लाइक दैट। दैट्स ग्रेट। दिस वॉर्थ वाली जो बात है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ एटमॉस्फेयर। जैसे मेरा काफ़ी बेकार का इंप्रेशन पता नहीं क्यों बना के रखा लोगों ने कि रूमी सर बहुत स्ट्रिक्ट है। यस, आई एम स्ट्रिक्ट, आई एक्सेप्ट इट एंड आई थिंक फेयर इनफ। लेकिन मेरे में किसी के लिए वो नफरत नहीं है। कई लोगों को सुना है कहते हुए, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, अरे आपको समझ में नहीं आएगा, आप रहना दीजिए। यू नो, ये कैसे हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आए? या तो आप में कमी है हुई ना, या तो आप समझा नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह से उसको समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरह से समझाइए। ये कहना कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप रहने दीजिए, तो फिर वाई आर यू इन द क्लासरूम देन? आपका काम ये नहीं है कि आप ये देखें कि किसका कितना। देखो बेटा, पूरे क्लास में आप देखेंगे कि हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है। किसी चीज़ को परसीव करना, किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, कुछ लोग बहुत जल्दी समझ आते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ लोगों को कई बार समझाना पड़ता है तब जाके समझते हैं। तो आप ऐसा डिफ्रेंशिएट मत करिए। आप क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि जिसको नहीं समझ आए तो बाकी स्टूडेंट्स खामोश रहेंगे जब तक कि उसको समझ में ना आ जाए बात। जहाँ पे इंसान को डर ना लगे क्लासरूम में। कई स्टूडेंट्स जो हैं डरते हैं क्लासरूम के अंदर, अगर मैंने सवाल पूछा तो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। यू नो, दैट शुडंट बी देयर। That kind of, I fully agree with this. You know, this should be a demand actually. That classroom का atmosphere ऐसा होना चाहिए, cordial होना चाहिए. Yes, sir. Definitely warmth, the word used is perfect, absolutely. ताकि आप क्लासरूम में आए तो आप कंफर्टेबल रहें, आपको डर नहीं लगे। Okay, sir. Sir,
in your teaching career, did you see any pattern change? For example, nowadays we have this students, first year students, and do you think that their problem is something different as compared to the students back 10 years back, 20 years back? Is there any different you are seeing in the students? एंड आई थिंक जनरेशन तो चेंज होता ही है ना, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग के लोग आते हैं। अब यह है कि थोड़ा सा आइसोलेटेड केस था जब हम लोग थे यहाँ पे स्टूडेंट की हैसियत से, तो JNU वाज यूनिट इटसेल्फ, यू नो। बाहर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत कम थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी का था, वैसे फाइव वगैरह तो डेफिनेटली थे, लेकिन आप इमेजिन करिए, आई हैव बीन ऑलवेज पॉलिटिकल, नेवर विद एनी पॉलिटिकल पार्टी इन JNU, बट यू विल नॉट बिलीव दैट एनी you know, during our election, JNSU, Yes, sir. the people would come and give speeches. तो हम लोग का तो हॉस्टल हॉपिंग होता था, मतलब मेरा कम से कम। जैसे मान लो किसी तरह मिछरी आ रहे हैं कहीं पे, मैं जल्दी से पहुंचता था सुनने के लिए, क्योंकि आई न्यू कि ये बोलता बहुत अच्छा है और उसका सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे कोई आ रहा है तो वहाँ भाग देते, इर्रेस्पेक्टिव कौन सी पार्टी का है वो नहीं। मैं ये चेंज आजकल देख रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत एनिमोसिटी आई है। मैं आपको बताऊँ, मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो अलग अलग पार्टी के थे, और मेरा तो ये था कि भाई जो मुझको पसंद है मैं उसको वोट दूंगा, चाहे किस पार्टी का क्या नहीं देने वाला था। तो उन लोगों के साथ काफ़ी बहस भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन इमेजिन करो कि उसके बाद शाम में बैठ के गंगा ढाबा में हम लोग सब मिल करके चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो मतलब वो चैप्टर ही खत्म हो गया। वो चैप्टर अलग है, वहाँ पे हम लड़ेंगे, वहाँ पे हम बहस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मेरे दोस्त हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, तुम्हारा पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हैं यहाँ पे JNU में। उस किस्म की फीलिंग आ गई है कि उससे बात नहीं करना, यू नो। मुझे नहीं समझ रहा है ये फीलिंग आई कैसे है और क्यों आई है। हो सकता है बाहर का इन्फ्लुएंस हो या क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो वो जो कॉर्डियल रिलेशनशिप था बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो कॉर्डियल वो रिलेशन था, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लिप आउट कर रहा है, जहाँ तक मुझे एहसास होता है। Students would, some of my classmates would be becoming teacher or professor. So what are some your experience, what are some learned teaching experience you want to share with our classmates, our seniors going in वो तो मैंने खैर डेफिनेशन दे ही दिया कि मैं क्या समझता हूँ कि अच्छा टीचर कौन होता है। पहले तो लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एक टीचर सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, उसको सुनना भी है, और जब तक वो ये लिसनिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होगी वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। उसको जो है, देखो जो मेरा क्लासरूम है ना, वो मेरा एक एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे हर कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हर जनरेशन का अलग अलग तरीका है, अलग अलग बिहेवियर होता है, तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। और फिर पहली बात, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेजिन करो, मैं तो सोचता हूँ कि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन मैं जो है सुबह 8 बजे जब अपने कमरे पहुँचता हूँ, चाहे 9 बजे क्लास हो चाहे 11 बजे क्लास हो, मैं 8 बजे पहुँच जाता हूँ, और फिर मैं जिस पे क्लास होने वाली है मैं उसकी तैयारी करता हूँ। इवन फर्स्ट ईयर फॉर दैट मैटर, फर्स्ट ईयर लोग कहते हैं उसमें क्या तैयारी करनी, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर के लिए भी बैठता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे इनको कैसे समझाना है। तो आपकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, एंड यू शुड बी ऑलवेज अप टू डेट। क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई सा भी सवाल पूछ सकता है, ये तो आप मान के चलिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, अगर मान लीजिए नहीं पता है आपको, स्टूडेंट ने पढ़ा होगा और आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं। यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्टली कौन सी किताब पढ़ी थी तुमने। तो वो मतलब इतना ओपन होना चाहिए इंसान को कि ये नहीं कहूँगा कि नहीं तुम चुप हो जाओ, मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना, नहीं।
मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो लेट मी थिंक ओवर इट, और यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द क्लासरूम, यू नो, क्योंकि स्टूडेंट्स, आप देखो एक टीचर जो है ना वो स्टूडेंट के पेरेंट्स को रिप्लेस करता है। स्टूडेंट जो है सब कुछ छोड़ के आपके हवाले आता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी आपको देता है, क्योंकि उसको पता है मेरी किस्मत लिखने वाला ही मेरा टीचर ही तो है। उसने मुझे फेल कर दिया तो फेल कर दिया, मैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को एक बच्चे की तरह समझे कि उसको कैसे, क्योंकि देखो एक टीचर ही नहीं होता, एक मेंटोर होता है, जो कि एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए उसमें, कि मैं उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। इतनी कैपेसिटी ज़रूरी है एक टीचर के लिए कि वो अपने स्टूडेंट को एक लेवल से लेकर के दूसरे लेवल तक पहुंचाने के लिए उसको कितना उसको दे रहा है, ताकि वो दूसरे लेवल पे जब पहुंचे तो उसे परेशानी ना हो। इतना नॉलेज उसको दीजिए, इतने उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, है ना। तो स्पेशली देखो ना, अब हम लोग के यहाँ जो है अब जब ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी समझिए, तो मैंने क्या समझा। अब देखो, अब हम अलग हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं। हमने अगर एक नॉवेल आराम से पढ़ लिया तो इसका कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो स्टूडेंट भी वो लैंग्वेज, मतलब वो नॉवेल पढ़ लेगा, और वो भी फॉरेन लैंग्वेज में। तो शुरू में तो जब हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था तब, तो हम तो यही देखते थे कि जो अगर मेरे इसमें ये कैपेसिटी है तो दूसरे में क्यों नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमने नए नए तरीके सोचे। मैंने सोचा कि चलो अब ऐसे नहीं हो पा रहा है, अगर पूरा नॉवल लाइन से नहीं पढ़ा जा पा रहा है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, तो एक काम करते हैं कि क्लासरूम में ही जो है नॉवल को मैं पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जर्ब्स लेकर के उस नॉवल को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, तो अब ऐसा करो, कई नॉवेल्स का जो है आपके पास ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। मैंने कहा पैरेलल टेक्स्ट लेकर के आप चलिए। यू सी, अनटिल अनलेस आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है, तब तक कि मैं ख्याल से मैं ये सॉल्यूशंस भी ना दूँ, है ना। तो एक टीचर को स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो उसी वक्त समझ सकता है जब उसको अपना पास्ट याद रहे। पास्ट जब वो स्टूडेंट था तो उसको कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी, क्या क्या परेशानियाँ हो रही थी, राइट। तो अच्छा टीचर बनना है तो पहले तो अपने स्टूडेंट्स को अपने से नीचा मत समझो, एक बराबर समझो, चाहे वो कितना भी आपसे छोटा क्यों ना हो। उसकी सोच और आपकी सोच से बहुत टकराव हो सकता है वो आप जिस तरह से, मैं तो जब लिटरेचर पढ़ाता था तो मैं स्टूडेंट्स को क्या साफ कहता था, ये मत समझना क्योंकि ये लिटरेचर है, कि जो रूमी ने कहा वही पत्थर की लकीर है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। कि लिटरेचर जो है वो इंटरप्रेशन है, इंटरप्रेट करते आप लोग जो है एक ही मुद्दे को आप अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर आपको पत्थर काला दिख रहा है तो मुझको कुछ और कलर दिख रहा होगा, यू नो। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि आप लोग ने रेनबो तो देखा है। यस सर। रेनबो के 7 कलर जो है होते हैं, लेकिन हम लोग अपने नेकेड आई से ना पूरे 7 कलर नहीं दिख पाते। यस सर। तो क्लासरूम भी आपका वैसे ही है कि कितना किसके पास क्या हिडन टैलेंट है आपको नहीं मालूम है, आप उसको इनकरेज करिए ना। और सिर्फ ये नहीं है कि अगर मुझको मान लीजिए कि रुस्कीज़ी पढ़ाना है, रशियन लैंग्वेज पढ़ाना है, तो बस मैं रशियन लैंग्वेज की ही बात करता रहूँ। मैं उनसे पूछूँ तो सही उनका क्या इंटरेस्ट है, ताकि उनको ये तो लगे कि हाँ रूमी सर जो हैं वो कम से कम मेरे जो इंटरेस्ट है उनके बारे में पूछ तो रहे हैं। अपनी बात कहो, एक फैमिली की तरह रखो, और कभी भी कम्युनिकेशन बंद मत करो स्टूडेंट के साथ, कभी भी, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो चाहे बुरा स्टूडेंट नहीं होता है, जो कमज़ोर स्टूडेंट हो उससे भी रिश्ता बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कमियां जो है ना वो मेरी ताकत नहीं बनती हैं, मुझको सिखाती हैं। ये नहीं है कि आपको ये नहीं आता है तो मुझको तो आता है, ये एटीट्यूड गलत है। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो मुझको एक लेसन दे रहा है कि रूमी उसको ये बात इस तरह से समझ में नहीं आ रही है, ट्राई सम अदर इनोवेटिव वे। यू शुड बी ऑलवेज ओपन
बिकॉज आपका जो क्लासरूम है ना वो आपका एक्चुअली एग्जामिनेशन सेंटर है। आप लोग के यहाँ तो 3 टेस्ट होते हैं, हमारा डेली होता है। हमारा डेली वेन एवर आई गो टू द क्लासरूम इट्स माई एग्जामिनेशन कि मैं पास हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो ये क्वालिटीज एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग टीचर बने तो हमेशा ध्यान रखिएगा। Sure, sir. I'll be remembering this. Sir, you talked about Russian literature. Sir, Russian literature, as we all know, that's so deep. When we try to read it, हमें कुछ और ही समझ में आता है, किसी को कुछ और ही समझ में आता है। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ते हैं, कुछ भी आप उठाते हो, तो वो जो सही से कभी कभी लगता है कि मैंने मीनिंग नहीं समझ। जैसे फॉर एग्जांपल सिगानी, मैंने सिगानी पढ़ी, कहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो what is right way and how to understand Russian literature well over your own experience? Not only Russian literature, any literature for that matter, you know. मैं तो आपसे कह रहा हूँ उसको लिटरेचर को समझा नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ लिटरेचर पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हें लिटरेचर पढ़ाने नहीं आया हूँ, और मैं आपको सिर्फ वो नॉवेल का जो मुझे समझ में आ रहा है, जो रास्ता मैंने देखा है, वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो रास्ता गलत है या उसमें और 2-3 लेन्स निकल रहे हैं जिस पे शायद मेरी नज़र नहीं गई है। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और एनालाइज करने की कोशिश करिए, राइट? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कहा वो सही है। और ब्यूटी ऑफ लिटरेचर यही है कि एक ही चीज़ में आपके 1000 ओपिनियंस है कि नहीं। अब आप तिगानी ही ले लीजिए, इसके पे पता नहीं कितने आर्टिकल्स लोगों ने लिखे और अलग अलग मुद्दों में लिखे हैं, है ना, अलग अलग मुद्दों में लिखे हैं, अलग अलग तरीके से लिखे हैं, बल्कि एक ही पॉइंट को लेकर के किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की हो, जो उनको समझ आया वो दिया गया है। तो लिटरेचर का एक मतलब ये मैं तो समझता हूँ कि ब्यूटी है कि आप जो है एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, अलग अलग इंसान अलग अलग इंटरप्रेट करेगा उसे। और हर नॉवल जो है आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, मतलब कोई भी नॉवल क्या कोई भी लिटरेरी वर्क जो है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है। आप लोग हिंदी जानते हैं, आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो अगर आप लोग लिटरेचर से वाकई में प्यार करते हैं तो आप लोगों को बाकी लिटरेचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि उससे आपका जो है आपकी सोच जो है ना वो बढ़ेगी और आप उसको ज़्यादा ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी जो अब मान लीजिए आपका पुष्किन है, तो पुष्किन के साथ वाला जो एरिया है, जो एज है, उसमें कई लोग और भी पैदा हुए थे ना, तो वो जो है पूरा पीरियड बाकी लोगों ने कैसे देखा। आप लोग क्या वो बहुत फेमस है ना, मालिक की चिला विद द स्मॉल मैन। अब ये स्मॉल मैन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ रशिया में नहीं है। आपका ये कंसेप्ट आपको बाकी लिटरेचर में भी मिलेगा। तो कितना मज़ा आएगा कि जब हम अगर स्मॉल मैन की बात कर रहे हैं रशियन लिटरेचर में, तो बाकी जगहों में कैसा उसको डिपिक्ट किया गया है। सो इट बिकम्स इवन बेटर, यू नो, टू अंडरस्टैंड दैट मालिक की चिला विद। And sir, how literature shapes a person, if you can? I think it guides you proper. और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी रशियन बोलनी है तो रशियन लिटरेचर पढ़िए, ओरिजिनल में आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी रहेगी। ओके सर, इट विल हेल्प यू। थैंक यू सर फॉर। हाँ, क्योंकि वैसे भी सिर्फ लिटरेरी वर्क क्या, आप कुछ भी पढ़िए, क्योंकि रीडिंग से फ़ायदा ये है कि आपका ग्रास्प लैंग्वेज से बहुत अच्छा हो जाएगा। रीडिंग, हाँ, it makes you feel better while speaking, by the way, because you will know so many words, so many expressions, right? Yes sir. Sir, how to if we are making mistake in Russian grammar, and last time when we were discussing last year, so you were telling sir ki don't repeat the same mistake, but it happens with me sir that I keep committing that same mistakes and I'm not able to find a way out. I'm making mistake in grammar. आपको पता है ये हैबिट होती है एक्चुअली, मतलब यू हैव डेवलप्ड अ हैबिट। कभी कभी जो है ना ये आदत हो जाती है एक। आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, कई लोगों को मैंने सुना है हिंदी में भी
अब वो जो है उसको चाहे वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या है, लेकिन वो हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली निकलता है, दैट इज इट, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। तो उस आदत को तोड़ने के लिए है कि आप जो सही है आप उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार उसको इस्तेमाल करिए। Repetition is the key. Yes, of course. No doubt about it. Sir, if a student who is in bad state, in the sense he is not getting good marks, he is not performing well, so what are something you want to say to them who are watching? Well, sweetheart, I tell you very frankly, you know, अगर मैं किसी दिन अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं अपना जो मार्कशीट है ना उसको पब्लिक कर दूंगा। मेरे मार्कशीट में मतलब आप समझे कि वो पूरा का पूरा कलरफुल है, मतलब ऊपर से नीचे तक जितने भी ग्रेड पॉसिबल है ना वो सब है। लेकिन लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू नो योर ग्रेड्स डू नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर। कितने अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे वो नहीं बोल पाए, कितना भी अच्छा हो उसका थ्रू आउट उसको A+ मिल रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन देने आया कुछ हुआ कि ठीक से जवाब नहीं दे पाया। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो जितने A+ लिए थे उसने बकवास लिया है, नहीं, उस वक्त उस समय उससे नहीं हो पाया, बस मामला खत्म। तो दैट डजंट मीन दैट पर्सन एनीथिंग एनी लेस। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, एज अ स्टूडेंट आई कैन टेल यू, कई बार ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, नहीं हो पाया। फाइन, फेयर इनफ, बट आई नो व्हाट आई नो। ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया, मुझसे नहीं हो पाया, ठीक है ना, आज नहीं हुआ तो कल होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान से करो, थोड़ा सा और जो है अपने आप पे काबू लाओ, ताकि वहाँ पे आपका कोई ऐसा ना हो कि बोल ना पाए। और फिर प्रैक्टिस पे पर्सन परफेक्ट। आप लोग को एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग बोलने का जो है ख़ास तौर से मैं आप लोग जितना ज़्यादा बोल सकें बोलिए, आपस में बोलिए, अपने आप से बोलिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने आप से बोलिए, मगर जब तक कि आप, क्योंकि आप देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि फॉरेन लैंग्वेज, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे, जब हम लोग ने बोलना शुरू किया था तो हम लोग कितनी गलतियाँ करते थे, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि ये टेबल है, कुर्सी है, राइट। ये तो धीरे धीरे करके ही सीखते हैं, राइट। ये अचानक ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं चल सकती है यहाँ पे। तो इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मॉस्को में अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ और है, वहाँ सभी लोग रशियन में बात कर रहे हैं और आपको रशियन में बात करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा समझेगा ही नहीं। तो वहाँ पे आपकी एक मजबूरी हो जाती है, यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे हम लोगों को अपना एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपसे बात करूँ तो आप मुझसे रशियन में बात करिए, यू नो, पहले मिस्टेक्स कर रहे हैं तो करने दीजिए, कोशिश करिए कि जितना खुद समझ आ जाए कि हाँ हमसे ये सेंटेंस ठीक से नहीं हुआ है, ये यहाँ पे गलती हुई है मुझसे। So sir, jeśli ja хочу продолжать мою учеба в России, это будет хорошо для меня. Я не знаю, тут есть возможность или нет, честное слово, но это будет, конечно, хорошо, если продолжите свою учебу в России. Это, конечно, плюс. Спасибо, sir. I'll be trying continuing my studies in Russia. Best of luck to you. Thank you for that, sir. So, sir, next question would be about health again, sir. About? Health. Yeah, health, sir. Okay. So, last time we did discuss about health. You told us to start something. Your story was that you started with dead hang, 10-second dead hang. I still remember that. So, sir, along with physical exercise, what we eat, that also determine how we feel and how is our bodies. I don't know. You know, Gaurav, as far as eating is concerned, I'm a wrong person to ask this question. You see, I have never been, you know, a very disciplined kind of a person as far as eating is concerned. If you ask me personally, what is my diet like? Is okay. Before the workout, I have
bananas and so on and so forth. And after that also banana. Alright. Yes, I eat eggs also. बट जो नॉर्मल खाना खाते हैं आप लोग, मैं भी खाता हूँ. मेरी आदतें बहुत ख़राब है. लोग कहते हैं ना कि ये मत खाया करो, ये मत खाया करो, वो मत खाया करो. मेरे बस का नहीं. कुछ लोग तो पता नहीं क्या कीटो डाइट और कौन सा डाइट करते हैं. मैं उतना डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता. मुझे अगर मन करेगा छोले भटूरे खाने का तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा. मेरा मन करेगा पानी पूरी खाने का तो पानी पूरी खाऊंगा. मैं अपना को रोकता ही नहीं. ओवर इंटेलिजेंस मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप बहुत सारा फैट सुबह से शाम तक खा रहे हैं. मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली खाता हूँ. हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मेरे पेट में ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई एम नॉट वेरी कंसर्न अबाउट डाइट. आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन एज फार एज डाइट इज कंसर्न. मतलब आई कैन गो बर्सर्क. But sir, you're regular in workout, right? Yeah, I make it a point to do that. Regular. कभी each कभी day. तो बीच में बंक मार देते हैं. Skinty, what is your workout regime look like? Well, I train only one muscle every day. Like either it's bicep or tricep or abs. Abs. Yeah. Wow. All right. So I take a break only one day. If I'm regular. Otherwise, sometimes तो 3-4 break हो जाता है. 4 days. लेकिन I don't train 2 muscles at the same day. Right? At the same time. And that's how it is. Like आज बाइसेप किया तो कल ट्राइसेप होगा. That kind. ताकि क्योंकि लोग कहते हैं कि मसल को रेस्ट भी चाहिए होता है ना. Right. तो मैं यही ट्राई करता हूँ. Sir, most of my classmates wants to start their fitness journey, but I don't know why they are not able to start. But after listening to this podcast, I hope that most of my friends who wants to start their journey, they will be You're inspired. referring to him or what? Never, sir. Really sorry, Rahul. Never. But my classmates really want. They either keeps telling me, okay, Gaurav, I want to start. But if मैंने पता है एक्चुअली यू नो आई थिंक जो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया इट वाज नॉट बिकॉज आई वांटेड आई वाज वेरी कंसर्न अबाउट माय हेल्थ. इट इज काइंड ऑफ यू नो अ डिसिप्लिन प्रॉब्ली. यू नो कि आपका एक रूटीन बन जाता है. तो जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वर्कआउट करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा आपका डाइट में भी थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ प्रोटीन तो चाहिए, right. ये तो चाहिए वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए. तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आ ही जाता है. So, sir, we can trace. लेकिन मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैड डॉग टाइप सी डॉग कि पीछे ही पड़ गया अपनी सेहत के कि नहीं नहीं भैया हमें तो ही मैन बनना है. मुझे कोई शौक नहीं ही मैन बनने का. आई जस्ट वांट टू बी फिट. आई वांट टू बी यू नो ओके लाइक आई शुड फील कंफर्टेबल विद. That's great, sir. It's quite always for me interesting to talk about health with you, sir, because I have never seen in my whole life that a person like you doing their chest and doing their abs. So it's really quite motivating for all of my classmates and for me as a person. Really, if I want to dedicate my fitness journey, I would dedicate to you, sir. Because Well, thank you so much. Because of you, sir. If I can impress one person, then I think it's I am quite a highly feat. impressed, sir. I am highly impressed that no one, you know, most of my friends either they keeps complaining. Even I do sometimes. Oh, I don't want to go. But you are a regular, and it looks. नहीं एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग. समटाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. मतलब ऐसा वो नहीं है कि बस करना ज़रूरी है चाहे मन कर रहा ना कर. क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं करना चाहिए कोई चीज़ भी. एक्सरसाइज तो छोड़िए, कोई भी जिसमें आपका जी नहीं चाह रहा है अभी करने का मत करिए, क्योंकि वो काम ठीक से होगा नहीं. अगर आपका मन कर रहा है तभी करिए. चाहे आपका होमवर्क हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका गेम हो, चाहे आपका फिटनेस रिजीम हो, जब तक कि आपका अंदर से इच्छा नहीं होगी तब तक इट्स यूजलेस एक्चुअली. क्योंकि आपने बॉडी यू नो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी एक्चुअली पनिशिंग योर बॉडी. योर बॉडी इज नॉट रेडी. बॉडी डजंट वांट इट यू नो. तो आप कोई चीज़ भी अपने आप पे फोर्स मत करिए. जब आपकी इच्छा है तब करिए. मेरा भी वही, मेरा तो बिल्कुल वैसा ही है. कभी कभी तो कहता हूँ कि छोड़ो यार आज रहने.
चलेगा. Okay, sir. So now, sir, let's talk about books and movies a little bit. We want to know you more in this field also. So, what books do you like? Could you give us some list of books which you like most this year, which you read, or some I've got movies? many books very literary books that I like. Mm-hmm. What I don't like, I should tell you what I don't like actually. Okay. I don't like science fiction. I don't know, it doesn't attract me at all. Really, frankly speaking, it doesn't. Neither the films nor the novels. It has never attracted me much. Mm-hmm. जब मैं छोटा था तो एलिस्टर मैकलेन की नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते थे. एयरपोर्ट पे उसका वो प्लेन्स पे बहुत बच्चों के लिए है एक्चुअली वो, मगर उसकी फिल्म्स भी बन चुकी हैं. इट्स ऑल्सो फॉर उसमें प्लेन का ही है बेसिकली इसका. तो उसकी फिल्म भी मैंने बाद में देखी थी. फिर बचपन में मेरी सिस्टर्स पढ़ती थी एनेट ब्लिटन को. वो भी मैं पढ़ता था, खूब मज़ा आता था उसमें. अभी भी अगर कोई मुझे देगा एनेट ब्लिटन या लिस्टर मैकलेन, मैं ख्याल से मैं पढ़ूँगा. आई रीड इट अगेन. और जो कॉमिक्स आते थे जैसे आर्चीज है, फैंटम है, और क्या क्या था, और दो और थे जो हमारे पास रेगुलरली आते थे हम जब छोटे थे. अभी भी मुझे कहीं दिख जाता है रिची रिच या मैं पागल हो जाता हूँ. मुझे कुछ कार्टून्स बहुत पसंद है. लाइक टॉप कैट मुझे बहुत पसंद है. आजकल तो आता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मैंने देखा नहीं बहुत ज़माने से. वरना एवरी डे मेरे छोटे बच्चे जो थे तो पापा आपका टॉप कैट आ गया. अब आप आ जाइए. सो लाइक अभी भी मुझे वो मेरा बचपना जो है ना वो गया नहीं है. मुझे भी बहुत मन करता है छोटे बच्चों की तरह कभी कार्टून देख लेते हैं, कभी कुछ लिटरेरी वर्क्स में मुझको दस्तयेव्स्की रशियन में बहुत पसंद है. उसका जो डेप्थ है, एक्चुअली ही इज नॉट ओनली राइटर बट ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट. वो इंसान का जो साइकोलॉजी है उसको कितने प्यार से वो हर नॉवल, चाहे उसका कोई सा भी नॉवल आप देख लीजिए, ह्यूमन साइकोलॉजी में मेरे ख्याल से वो माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है. अमंग्स रशियन राइटर्स आई थिंक माय फर्स्ट मतलब लिस्ट अगर बनाई जाए तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा. Dostoevsky. Wow. Yeah. No doubt about it. Any other books do you like? I like English literature a lot. I read quite a few, and I keep on reading actually. Then, like I also love Maupassant. Yeah, he's very one of my favorites. Somerset Maugham. उसका भी आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा है. Could you tell again, sir? Somerset Maugham. Somerset Maugham. उसकी किताबें बहुत जबरदस्त हैं. मतलब आपको मतलब जो कट कर रख देता है. Fiction. Obviously. अभी तो आप लोग को काफ़ी जर्नी आगे तक जाना है. Yes, sir. आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? Sir, currently in Russian literature, we are done with Chekhov. We read Pushkin, Lermontov, all this Pisacher from 18th century to early 19th century. So it was great. Our Russian professor is teaching awesome current literature. So we are really liking it. So along with sir, we are also focusing in the life of those writers itself. For example, Russian writers like Dostoevsky, Chekhov, their stories also awesome. How they have, what I found sir कि जितना भी ये जो writers हैं उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं उनमें उनकी personal जिन्होंने अपनी life में what they have suffered, it depicts in those works. For example, अगर Chekhov को लेते हैं, Chekhov was he had a tough childhood and still वो अपनी छोटी सी वर्क्स में ही कन्वेज लॉट्स ऑफ मैसेज.
in funny ways, but it is there. So what I found in Russian literature, sir, Russian writers. So along with this, sir, what are some? This would be a little philosophical. So now, if you see your teaching career, whole teaching career, was it meaningful for you? Sorry, I didn't get the point. If you reflect back on your teaching career, do you think that it was meaningful? Of course it was. Of course, there's no doubt about it. And I think I learned more than I taught. I learned while teaching. You know, my knowledge enriched because I was teaching. I think that made a lot of difference, and I have no regrets. Absolutely, every step was a learning step. You know, for me, there's no regret. Absolutely. And because of teaching, I think I wrote. क्योंकि एक आउटलेट था मेरे पास कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं किसी के साथ डिस्कस करूँगा, मैं क्लासरूम में डिस्कस करूँगा. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. देयर आर नो एब्सोल्यूट नो रिग्रेट्स, क्योंकि मुझे हर स्टेप पे मुझे कुछ सीखने को मिला. जो भी आप लोग को जो भी कोई लिटरेरी वर्क पढ़ाता हूँ तो उसके लिए मैं मतलब जान दे देता हूँ 100% उस वर्क पे, ताकि कोई भी चीज़ कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, है ना. तो इतना ये जो पढ़ने का ये वाला जो तरीका है ना, वो शायद पहले नहीं, अगर मैं टीचर नहीं होता तो शायद नहीं होता ऐसा कि इतना डीप जा करके आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, इतना डीप जाके हर करेक्टर को देख रहे हैं कि कैसे डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको समझाना है किसी को, यू नो. तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर होने की वजह से मैं किसी भी क्रिटिकल वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क को ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करता हूँ. So academia is a great way to know ourselves, and it broaden our learning capacity. What do you think, sir? In the sense? In the sense कि because of teaching, sir, you learned a lot of things. Yes, that's what I'm saying. You see, अगर मैं पढ़ाता नहीं तो शायद मैं इतना सीखता भी नहीं. और टीचिंग से ज़्यादा तो लर्निंग प्रोसेस है. फॉर एनी टीचर, नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक फॉर एवरी टीचर आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. Because when you enter the classroom, there are different kind of students, right? सबका लेवल एक जैसा तो नहीं होता ना. तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि आप हर स्टूडेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई कॉल एज लर्निंग एक्सपीरियंस. Sir, now we're getting end of our podcast. There are two questions I'm having in my mind. That first one is, sir, how you want to students, more broadly, how you want to world remember you as a person if you. Oh God! Yeah. Just remember me as a roommate. That's it. I haven't. No, I don't have medals on my chest. जो प्यार दिया है आप लोगों ने ना, उसी को लेके जा रहा हूँ जीनियस से. जो इज्जत और प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, they are more than medals. I don't have to carry them on my chest. वो दिल के अंदर. And sir, ये तो डिपेंड करता है आप लोग पे कि आप लोग मुझे किस तरह से याद करना चाहते हैं. yes. And sir, if all, so it's little hypothetical, but let's do this exercise. If whole world, all people of this world currently watching us, currently watching you, what is one piece of saying or one piece of something you want to tell to all the people who are watching us currently in the world? भैया पूरी दुनिया को तो हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, क्या करना चाहिए. Your message basically, sir. मेरे ख्याल से मेरा मैसेज तो एक ही है, बी अ ह्यूमन बीइंग. और ह्यूमन बीइंग से मतलब है कि आप में वो इंसानियत होनी चाहिए. सबका जो है किसी को नज़रअंदाज मत करो, किसी को मतलब आइसोलेट मत करो. चाहे वो आपसे बात करता है नहीं करता, अगर उसके आपके पास आया है तो गिव हिम और गिव हर दैट स्पेस कि अपनी बात रखो. मतलब ये फ़ौरन कहना कि नहीं हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड बहुत गलत है. और मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग के पास एक ही तो दिल है,
वो दिल जो है वो उसको इतना वसी बनाओ कि सब समा जाए उसमें, सबके दुख दर्द परेशानियाँ खुशियाँ सब कुछ आपके दिल में समा जाए, जहाँ पे आप समझ सकें किसी को क्या क्यों परेशानी है, कैसी परेशानी है, और जितना हो सके करिए। हर इंसान सबकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी है उसमें आप कोई कमी होने मत दीजिए, क्योंकि जो आपके पास कैपेसिटी, देखो मैं अगर मुझे जो नॉलेज है, चाहे मान लो चलो लिटरेचर ही ले लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है तो मैं लेकर के क्या करूँगा उसका, मैं करूँगा क्या उसको बताइए। जब तक कि मैं उसको आप तक नहीं पहुँचाऊँ, जब तक कि आपसे मैं बताऊँ नहीं, आपको बताऊँ नहीं और आपसे डिस्कस नहीं करूँ, तो उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है, राइट। उसी तरह फीलिंग्स आ गई, अगर मुझे खुशी हो रही है तो मैं उस खुशी को लेकर के क्या करूँगा, या मुझे दुख है तो मैं उस दुख का क्या करूँ। हालांकि दुख को अपने पास ही रखना चाहिए, दुख को बांटना नहीं चाहिए। खुशियाँ ज़रूर बांटिए, लेकिन दुख आपका दुख है। Why, sir? यस इट इज़ यस। मैं आप तुम मुझे मेरे पास आओगे, कहोगे कि सर मुझे ये बहुत दुख हो रहा है इस बात का, तो मैं आपसे क्या करूँगा, मैं आपसे सहानुभूति, सिंपैथी, मैं कहूँगा मैं भी आपके साथ हूँ इस दुख में, खाक। अरे नहीं समझता कोई दुख सुख, कोई नहीं समझता। कहने के लिए तो मेरे पास भी है, मैं आपका दुख समझता हूँ, ठीक है, मैंने एहसास किया, लेकिन आई कैन हेल्प इट। मैं आपका दुख, मैं उसका जो है कोई सोल्यूशन सोच के बता सकता हूँ कि इसको ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जो इंटेंसिटी है किसी की दुख की, वो इंटेंसिटी दूसरा नहीं समझ सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। So this would be your last message, sir, to the world, whole world. Be human. मेरे ख्याल से तो एक इंसान को ऐसे ही होना चाहिए जिसके पास मतलब इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई चीज़ है तो उसको फेस कर सके। स्पेशली यंग जनरेशन के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत दो। एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो गलतियाँ सबसे होती है, कौन ऐसा इंसान है जिससे कभी गलती नहीं हुई है? जिससे कभी गलती नहीं हुई उसको तो सूली पे चढ़ा दिया गया। गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती के लिए अपने आप को पनिश मत करो, क्योंकि आपसे गलती हुई, आपको एहसास हो गया आपसे गलती हुई, लेकिन डोंट पनिश योरसेल्फ फॉर दैट। अपने आप को जो है जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार करो, जितनी अपनी इज्जत कर सकते हो करो। तुम्हें खुद अपने आप से प्यार करने की ताकत होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा तुम ही जानते हो कि तुम्हारे पास क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। अपने आप को कभी पनिश मत करो। कई लोग बर्बाद हो चुके इसी चक्कर, उनसे गलती हो गई तो नशे में डूब गए, तो सिगरेट पे सिगरेट पिए, तो पनिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसकी बिल्कुल मत करो पनिश। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को समझाओ कि तुमसे ये गलती हो गई है, आइंदा मत करना। लेकिन अपने आप को पनिश करने का कोई सेंस नहीं बनता है। Compassion, sir. Yes, that's perfect because you have to love yourself the most. You have to respect yourself the most. तभी आप जो है आप पे कॉन्फिडेंस आ सकता है, तभी आप सारी दुनिया को फेस कर सकते हैं। Confidence, be, sir, comes when you start loving yourself, right? No, you start loving yourself, whatever you have. जो भी आप में है आप उससे प्यार करिए। अपने आप की इज्जत करने की ताकत रखिए। आप अपने नज़रों में अपने आप को जिस दिन गिराएंगे ना, उस दिन आप पनाह हैं। चाहे कोई दुनिया आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन अगर आप अपनी नज़रों से नीचे गिर गए तो फिर उठने बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे प्यार ज़्यादा करना है तो अपने आप से करो, सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत करनी है तो अपनी इज्जत करो। You'll be loved, you'll be respected if you do this. लेकिन अगर अपने आप से ही आप नफरत करें, अपने आप को ही पनिश करते रहें, अपने आप की इज्जत ना करें, कोई दूसरा करेगा नहीं आपसे प्यार, क्योंकि आपको हमेशा जो है यहीं पे कॉन्फिडेंस आता है। यही कॉन्फिडेंस का जो है का जो रूट है
वो मजबूत होता है। आप उस वक्त कॉन्फिडेंट होंगे जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, जब आप अपनी इज्जत करते हैं, जब आप अपने आप को पनिश नहीं करते हर छोटी चीज़ में या बड़ी चीज़ में भी। कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो जाए, डोंट पनिश योरसेल्फ। ये एहसास करना ही बहुत है कि आपसे गलती हुई, एक्सेप्ट इट, राइट? राइट सर। दैट्स इट, दैट्स हाउ कॉन्फिडेंस बिल्ड्स। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे जब आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हों, जब अपने आप से आपको नफरत हो गई हो, जब अपनी इज्जत ही आप नहीं कर पाए, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा आप पे? और अपनी गलतियों को ये मत समझिए कि वो जो है अपनी आप ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है और उसका सहारा आप खुद बन सकते हैं, कोई दूसरा आपका सहारा नहीं बन सकता है। मेरा तो ये मैसेज। Thank you, sir. It was podcast less therapeutic experience for us more. We are so grateful to host you as a Thank guest. you very much. and it will be always forever on YouTube videos. That story of Ravi sir on our stories by Gaurav. I'm so lucky to have you, sir, in my life, and I look forward to become a good man, as you said. Like Do it. have humility, have all this thing. Yes. I'll try my best to become that person, and I'll have myself always respecting myself. I'll be always respecting myself, loving myself. Please. Yes, sir. And I'll be keep doing things which you have taught us through your stories, sir. It was awesome, great. I'm so grateful. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir.